सो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज two sides AB and BC and the median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ। मीन्स हमारे पास जहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, there are two triangles ABC and the second triangle is PQR। This is AM and this is PN। AB is equal to PQ and BC, this whole BC is equal to QR and median. What is the meaning of median? Yes, Rashi, meaning of median? Sir, I don't know because I was not present in yesterday's class. बेटे ये yesterday डिस्कस नहीं हुआ। मीडियन तो आपके पहले कभी डिस्कस किया हुआ है 8th क्लास तक। Median means if AM is median then it means BM is equal to MC। if AM is median then it means BM is equal to MC। मीडियन क्या करता है, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और हमेशा जब भी मीडियन होता है तो इन दोनों के एरियाज भी इक्वल होते हैं। नाउ दिस मीडियन मींस AM इज इक्वल टू PN। फर्स्ट AB is equal to PQ and BC is equal to QR and AM is equal to PN। Show that triangle ABM, this triangle ABM and triangle PQN, this are congruent। तो यहाँ पे सब कुछ डाटा गिवन है। अगर ये इक्वल, फुल लेंथ अगर इक्वल है तो उसके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे। अगर किसी ट्राइंगल की फुल लेंथ इक्वल है तो इट मींस उसके हाफ पार्ट जो है वो भी इक्वल होगा। इफ BC is equal to QR then BC is equal to half of QR and half of BC is BM। Similarly, half of QR is QN। So BM is equal to QN and by triple S side congruency rule ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। Any doubt? Any doubt? Raise your hand. Next, it is fine. It is triangle ABC and triangle PQR। Now, in triangle ABC and in triangle PQR, these two sides are equal. Now, by CPCT, this angle is equal to this angle because ABM is congruent to PQN. So, angle ABM is equal to angle PQN. This angle is equal to this angle by CPCT. And these two sides are equal. AB is equal to PQ and BC is equal to QR। So again, second part, that is triangle ABC is congruent to triangle PQR। Any doubt? Any doubt? Solve करो नोटबुक पे फटाफट इसको। Solve it on your notebook। Yes, Rashi? Sir, can you please tell what is median once again? Yes, median, देखो, if this is a triangle, this is any triangle say ABC, अगर AM AD जो है मीडियन है, इफ AD इज मीडियन दैन इट मींस BD इज इक्वल टू DC। जो मीडियन होता है वो साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन डिवाइड द साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली इफ BE इज मीडियन, इफ दिस BE इज मीडियन देन इट मींस AE इज इक्वल टू EC। मीडियन मतलब मिडल पार्ट में कोई चीज लाई करना। जैसे अगर AD मीडियन है तो इट मींस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मीडियन हमेशा वर्टेक्स टू
मिड पॉइंट से मीट करता है। ये अगर मिड पॉइंट है तो ए और डी को जब मिलाएंगे दैट इज नोन एज मीडियन। If D is the midpoint of BC and if we meet vertex A, this is known as vertex, and if we meet vertex A to the midpoint of D, then the AD is median. Is it now clear, Rashi? Yes, sir. Yes, सॉल्व कर लिया इसको, हरी अप। The next question is fourth question. BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. First of all, draw the triangle ABC. Now this is BE and CF. BE and CF are two equal altitude, means BE is equal to CF. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is isosceles triangle. First of all, CF and BE is altitude, so it means this is 90 degree. This angle is 90 degree. Altitude का मतलब क्या होता है कि वो perpendicular है उस पे. Is it clear? The meaning of altitude is it is perpendicular, means BE is perpendicular to AC. So B is altitude. Now we have to prove the triangle ABC isosceles. ABC को isosceles triangle prove करना है. So we are in triangle this ABE. If we take triangle ABE, this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. Triangle, take triangle ABE. RHS प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको इसको प्रूव करना है. सबसे पहले आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे और साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, मींस AB और AC आपको इक्वल प्रूव करने हैं. यू हैव टू प्रूव AB इक्वल्स AC. Yes, try. Prove AB equals AC. Meaning of altitude is 90 degree angle and the length of this B is given to equal to CF. Kundan try करो. Sumit, Shravan, turn on your video. Sumit, Shravan, Raghavendra, Kundan, turn on your video and try fourth question. Yes, Prerna, try fourth question. Yes, sir.
चल रही। Yes, Yugansh. Done. No, sir, doing. Yes, हो गया बेटा. Yes, प्रेरणा. Sir, by ASA, it will be proved that triangle AB and AC are congruent. Triangle. ABE Yes. and AC are congruent. अच्छा, एंगल ए बी. एंगल की बात कर रहे हो बेटा या ट्राइंगल की? The triangle C. ट्राइंगल. ठीक है. इन ट्राइंगल ए बी एंड ए सी एफ. यस. Yes, sir. यस. इसके बाद Sir, angle AEB equals to AFC because 90 degree. यस. ये And एंगल जो sir, एंगल angle ए ई बी है, दिस इज इक्वल टू एंगल ए ई बी AF, इक्वल टू एंगल ए एफ सी. sir, Yes. because each are 90 degree यस. and angle A is common in both. यस. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बहुत कॉमन है. And sir, BE and CF are equal. It is given. BE and CF are equal. Yes, this is given. तो ये Sir, क्या हो जाएगी? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगी. ठीक है. कॉन्ग्रेंट प्रूव होते ही हमारे पास AE जो है, AE इक्वल आ जाएगा AF के बाय CPCD. yes sir. We will get AE equals AF by CPCD. और उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रायंगल BEC और BFC के लेंगे. BEC और BFC सेम. इसमें ये साइड इसकी इक्वल दे रखी है, ये कॉमन है और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे RHS लगेगा. क्योंकि चेक करो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, sides opposite to 90 degree hypotenuse and any one side and the other angle. So RHS से क्या हो जाएगा? ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी. हमने अभी अभी प्रूव किया ये साइड इसके इक्वल. तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो AC इक्वल आ जाएगी AB के. इज इट क्लियर? Yes sir. वेरी गुड बेटा. और किसी ने किया है? राशि.
Yes, Sumit. Yes, sir. Sir, by RHS we can prove this. हाँ. Yes, Sir, Dikshita. in angle in triangle BEC. Yes, yes. बेटा सेम ही है. अगर अलग है तो मैं बात कर रहा हूँ. Yes, Dikshita and Abhinav. Sir, can we take triangle ABE and triangle BEC? बेटा लाउड बोलो. Sir, can we take triangle ABE and triangle BEC? A, B, E and A. BEC. A, B, C. आप इन दो ट्रायंगल की बात करो. A, B, E and BEC. बेटा सेकंड वाली आपकी समझ नहीं आ रही किस चीज की बात कर रहे हो, क्योंकि बी सी इन सबकी आवाज सेम है, जो इनकी साउंड है वो सेम आती है. थोड़ा लाउड बोलो या चैट में टाइप कर दो, चैट बॉक्स में टाइप कर दो. BEC. BEC. ओके. ये ABE एंड BEC बेटा इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा. आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइड कॉमन मिलेगी, लेकिन उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे. एक एंगल मिल जाएगा, फिर कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव होंगे. हमें वो दो ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है जिसमें कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाए. इज इट क्लियर दीक्षिता? Yes, sir. ठीक है. पहले आप ये देखा करो कि मैक्सिमम डाटा जो हमें गिवन है वो किस दो ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो हम उसके बाद अपनी ट्रायंगल को डिसाइड करेंगे. क्योंकि इसका कोई वो नहीं है कि हमें ये रटना पड़ता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि डाटा कौन सा गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा. ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. Draw AP perpendicular to BC. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC and draw AP perpendicular to BC. So this is AP. Show that angle B is equal to angle C. बेटा ये आपने डायरेक्ट नहीं लिखना कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है. ठीक है. तो कॉन्ग्रेंसी से हम इसको प्रूव करेंगे. देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, दिस इज एंगल 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो एंगल 90 डिग्री. AP is common in both and AC AB are equal. This is given because ABC is isosceles triangle with AB equals AC. So by CPCT एंगल B और एंगल C आप इक्वल लिखोगे. इज इट क्लियर? अब डायरेक्ट मत लिखना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि उसने बोला है कि प्रूव करो. और इसकी एक थ्योरम भी थी ना, जो उसका भी प्रूफ आपके सिलेबस में है, वो डिलीट नहीं हुआ. ये जो थ्योरम थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में है. दिस इज ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC. We have to prove angle B is equal to angle C. तो इसमें या तो आप ऐसे कर लो, ये आप बस आप लोग क्या लिखना, ड्रॉ, या कंस्ट्रक्शन में लिख लेना ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, तब ये एज इट इज हो जाएगा. अगर इस तरीके से नहीं करना तो यहाँ पे क्या करो, मीडियन ड्रॉ कर लो या फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो. ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A. ड्रॉ AD विच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. उसके बाद आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. सो कॉन्ग्रेंट प्रूव होते ही ये देखो, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन आ जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा. तो बाय SAS
ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी। तो प्रूफ इजी है उसका। या फिर आप जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये भी उसी का प्रूफ बन जाएगा, बस उसमें फर्क क्या आएगा कि एपी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पे। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन एक्सरसाइज 7.3? सेवन पॉइंट थ्री कंप्लीट कर लेना बेटा। 7.4 कल डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 7.4 कल खत्म हो जाए। Raghavendra, turn on your video. Shravan, Sumit. यस सुमित, आपके एग्जाम होंगे। राघवेंद्र, सीलिंग देखने के लिए टर्न ऑन नहीं बोला, अपना फेस दिखाओ। नाउ एनी डाउट? यस राशि। Sir, question number 2. एक्सरसाइज 7.3। AD is altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। बेटा उसमें आपको बस एल्टीट्यूड का ध्यान रखना है। एल्टीट्यूड, द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड इज 90 डिग्री एंगल। ये सेम। शो दैट AD बाइसेक्ट BC। अगर AD यहां पे, दिस इज AD is altitude, it means this angle is 90 degree. Now we have to prove that this AD bisect BC means BD is equal to CD prove करना है। We have to prove BD equals CD. So to prove BD equal to CD, again take these two triangles. This is equal to this. AD is common and angle ADB is 90 degree. By RHS ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और by CPCD BD will be equal to CD. And if BD is equal to CD, then we can say that AD bisect BC. Is it clear, Rashi? Rashi, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Any other doubt? यस श्रवण। बेटा एग्जाम का आपको पता चल जाएगा, एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिस आ जाएगा उसमें। आपको डाउट पूछने, अगर डाउट पूछो, कोई भी मैथ्स का डाउट है। यस दीक्षिता एंड युगांश। यस दीक्षिता। Sir, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर यस बोलो बेटा। Sir, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन। अभी तो बेटा डिस्कस किया है, स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन था तो डिस्कस किया था। AB इक्वल्स टू PQ
AM equals to PN. These two are given, and BM will be equal to QN because BC is equal to QR given. So the half of BC is equal to half of QR, and half of BC is BM and half of QR is QN. So ABM जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएगी PQN के, और उसके बाद एंगल ABM जो होगा